दिस इज द चार्ट जो हमारे को बता रहा है कि कितना कल्टिवेटेड एरिया मिलियन ऑफ हेक्टेयर्स के अंदर इंक्रीज हुआ है। इन द 1950-51 जब हमारा देश आजाद हुआ था, ओनली 132 मिलियन हेक्टेयर्स हमारे पास थे कल्टीवेशन के लिए। नेचुरली जमीन कम रहेगी, लैंड कम रहेगी, तो प्रोडक्शन भी कम होगा। बट स्लोली एंड स्टेडली जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम लैंड कल्टीवेशन के अंदर बढ़ती गई, प्रोडक्शन लेवल हमारा लैंड का क्या होता गया, इंक्रीज होता गया, जिसकी वजह से फार्मिंग और बेटर होती गई। दिस इज अनदर चार्ट जो आपको यही बता रहा है कल्टीवेटेड एरिया कितना हमारे देश के अंदर कब कब इंक्रीज हुआ फ्रॉम 1950 टू 2016 एंड 17। कल्टीवेटेड एरिया ऑफ लैंड इन मिलियन हेक्टेयर्स। दिस इज अ चार्ट जो आपको दिखा रहा है विच इज शोइंग ईच एंड एवरी टाइप ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ टाइम। टिल 1960s ऑर्डिनरी सीड्स वर यूज्ड फॉर कल्टीवेशन, ट्रेडिशनल वंस जो जिनका प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होता था, लो यील्ड सीड्स। आफ्टर दैट, जैसा I have told you, in late 1960s with green revolution, high yielding seeds used for cultivation. But before that, ordinary seeds, traditional seeds were used for cultivation. Here is the line. In late 1960s, high yielding seeds, HYVs, used for cultivation. Because of that, green revolution was possible. High yielding seeds produce more amount of grain than a single plant or comparison to a ordinary traditional seeds. As a result, we can see that same piece of land would going to produce more and more quantities of food grains for your daily requirement. This is a chart. ये आपको एक चार्ट दिखा रखा है which is telling you about the modern forms of farming. किस तरह से फार्मिंग यूज कर जाती है। फार्म्स के लिए मशीनरी है, डीजल्स है, कैनल्स है, पंप सेट्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, डैम्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर में डिफरेंस होता है। मैन्योर नेचुरल काउ डंग, डेड प्लांट्स, दिस इज नोन एज द मैन्योर। फर्टिलाइजर्स केमिकल बिल्ड्स विच वी आर यूजिंग नाउअडेज, जिसके बारे में हम लोग वी विल डिस्कस सून। फार्मर्स इन द पंजाब एंड हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश फर्स्ट ट्राई द मॉडर्न यूज ऑफ इक्विपमेंट्स, मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग। ठीक है, मैनी ऑफ देम ब्रॉट फार्मिंग मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स फॉर प्लगिंग एंड फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ देयर फील्ड्स एंड देयर फार्म्स। Other than that, they were rewarded with high yields of it. Naturally, they are using the good methods of technology for irrigation and for farming. Because of that, the result is also very good. They are getting a very much result, high production capacity. Wheat grown from the traditional variety was 1300 kilo per hectare as comparison to that traditional one, because the use of this modern techniques of production, modern techniques of farming, good methods. High yielding seeds production went up to 3200 kg per hectare. I picked 32. कोई छोटी मोटी figure नहीं, it's a very good figure, good figure. Natural resources, we have to be very careful use. What are natural resources given by God to us? For example, water, isn't it? Land. We have to be very careful in its use because they are limited. Continuous use of groundwater can, because of the tube wells or due to any other method, can lead to the depletions of a water table. कहते हैं ना पानी काफी नीचे चला गया है, पानी नहीं आ रहा है ट्यूब वेल्स के अंदर, बोरिंग्स के अंदर। क्यों? Because we are using it unnecessary, we are depleting it unnecessary. Because of that reason, the level of the water goes very down in the earth. In Palampur, nearly about 450 families lives. ठीक है, मोर ऑफ द फैमिलीज आर लैंडलेस, यानी कि उनके पास अपनी खुद की लैंड्स नहीं होती थी। ठीक है, 150 families is about Dalits, belongs to the scheduled caste which we use. They don't have any land for their cultivation. उनके पास खेती बाड़ी के लिए कोई जमीन नहीं होती थी। रिमेनिंग फैमिलीज जिनके पास जमीन होती थी, नियरली अबाउट 240 फैमिलीज थी जिनके पास अपनी खुद की ओन लैंड होती थी। वो भी स्मॉल प्लॉट्स के अंदर लैंड्स को कल्टिवेट करते थे। दे हैव गॉट वेरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड फॉर द कल्टिवेशंस। 60 families belongs to the medium and large scale farmers who have more than 2 hectares of land their own, and few farmers, only few farmers are there who are having more than 10 hectares of land. 10 बीघा से भी ज्यादा उनकी खुद की जमीन होती थी। इन विलेज एरिया जितनी ज्यादा जमीन उतना ज्यादा प्रोडक्शन, उतने मोर देन यू आर flourish, उतने you are independent. This is the most important things in the village area which we see nowadays. As we see, earlier what happens, this is the big size of a village belongs to a one person. उसके 3 बच्चे थे, after his death तीनों ने land divide कर ली,
एंड अगेन उसके 3 बच्चे हुए, दे अगेन डिवाइडेड द लैंड इनटू फर्दर 3 पार्ट्स. सो स्लोली एंड स्लोली द विलेज, द एरिया इन द कल्टिवेशन डिवाइडेड इनटू वेरी वेरी स्मॉल कल्टिवेशन लैंड्स. तो बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट एरिया जो बीच की इनकी वॉल्स होती है, मड वॉल्स होती हैं, उसके अंदर मैनी वेस्ट एरिया हैज बीन कट ऑफ. दिस इज इन दिस पिक्चर वी सी दैट हाउ फार्मिंग इज डन. किस तरह से फार्मिंग की जा रही है, क्रॉप्स कल्टिवेट की जा रही हैं, हार्वेस्टिंग का टाइम हो रहा है, क्रॉप्स के उस पर पेस्टिसाइड्स, सीड्स सोन किए जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लक कार्ट्स एंड ट्रैक्टर्स एंड मैनी अदर टाइप ऑफ थिंग्स यूज्ड फॉर फार्मिंग. दिस इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट. हर विलेज में इसकी होती है, नॉट ओनली इन पालमपुर but every village. This is the basic activity. Now in this graph we see that how the distribution is possible in the areas, cultivated area and number of farmers. In the picture we can see that this is the cultivated area used and this is the number of farmers are doing cultivation. कितना large difference है इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो there is a huge difference. We require more and more cultivated area so that all farmers can get more and more opportunity for doing their work. After land, labor is the most necessary factor of production. Farming requires great deal of hard work. इतना easy नहीं होता farming के अंदर. From early morning till late night, आपको more and more hard work की requirement होती है. A small farmer, along with their all family members, used to cultivate in their own fields. Thus, the labor farming, they are using their own labor for the farming. अपने खेतों में खुद ही मेहनत कर रहे हैं so that ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें. मीडियम एंड स्मॉल फार्मर्स भी अपने लेबर काम कर रहे हैं, अपनी और अपनी फैमिली के साथ ही अपने लेबर में काम कर रहे हैं. बट इन सम एरियाज जो बिग फार्मर्स हैं, दे आर हायरिंग लैंडलेस फार्मर्स, लैंडलेस वर्कर्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इन देयर फील्ड्स. फॉर दैट दे हैव बीन पेड. उनको पेड किया जाता है. पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश, मनी वाइज, और इन द फॉर्म ऑफ काइंड, मतलब उनको खाना दे दिया जाता है या उनको कुछ क्रॉप का हिस्सा दे दिया जाता है कि ये क्रॉप अपनी आप 1 बोरी 2 बोरी 3 बोरी आप लेके जा सकते हो एंड यू कैन यूज इट. और इधर कैश दे देते हैं. वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू इट. लेबर्स, वर्कर्स विच आर कमिंग फॉर द फार्मिंग इन द विलेजेस फॉर अ लार्ज फार्म ग्रुप्स, दे बिलोंग्स टू अ पर्सन या फैमिलीज जिनके पास अपनी कोई लेबर, अपने कोई फार्म्स नहीं होते हैं. दे बिलोंग्स टू अ लैंडलेस फैमिलीज. They comes to their farmhouses, do work. For that, they are paid wages. उनका उस लैंड के ऊपर कोई हक नहीं होता. They are simply employees, simply workers. आएंगे, काम करेंगे. Wages can be paid in the form of cash or in kind. Laborers can be employed on daily basis. सुबह आए, शाम को काम किया, शाम को take your wages. Or for the particular time period, 3 months, 4 months, 6 months, or a particular full process. One crop, it can be a rabi crop or it can be a kharif crop. पर्टिकुलर क्रॉप फार्मिंग के लिए उनको यूज किया जाता है, उनकी लेबर को हायर किया जाता है एंड फॉर दैट दे हैव बीन पेड फॉर द फुल अमाउंट फॉर 3 months, 6 months और फॉर द डेली बेसिस, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डीलिंग बिटवीन द वर्कर एंड द ओनर ऑफ द लैंड. डाला इज एन एग्जाम्पल, नेम ऑफ अ पर्सन. डाला, डाला इज अ लैंडलेस वर्कर. ठीक है, who work for the daily in the village of Palampur. The minimum wages fixed by the government is rupees 300 per day. It is the minimum wages which is fixed by the government of India. But what is getting? Only 160 rupees. Nearly about 50%. Nearly about 50%. I repeat. What does it means? जो farmers हैं, big farmers हैं, वो उसको exploit कर रहे हैं because low level of employment. Many competition is there. डाला नहीं करेगा तो दूसरा करेगा. मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटल. फॉर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर, ट्यूबवेल्स, बोरिंग्स एंड अदर मटेरियल, यू नीड कैपिटल, यू नीड फाइनेंस, यू नीड पैसा, मनी चाहिए आपको. ठीक है, द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर ग्रेट डील ऑफ कैपिटल सो दैट फार्मर्स नाउ नीड मोर एंड मोर मनी फॉर फार्मिंग. स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी. मनी के आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो आप अपनी खुद की ओन मनी यूज करो और यू हैव टू बोरो फ्रॉम द अदर्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज मनी, कैपिटल, पैसा. एज वी नो द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर ग्रेट डील ऑफ मनी. फॉर एग्जाम्पल, फॉर बाय परचेजिंग ऑफ अ ट्रैक्टर, फॉर इरिगेशन फैसिलिटीज, ट्यूबवेल्स, बोरिंग एंड मैनी अदर टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट. जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, दे हैव टू बोरो मनी फ्रॉम द बैंक और फ्रॉम द बिग मनी लेंडर्स. बट जो बड़े फार्मर्स होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, उनके पास अपना खुद का पैसा होता है. दे हैव गॉट देयर ओन मनी, सेल्फ मनी. मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, दे हैव टू बोरो फ्रॉम द
banks or from any other institutions या from the money lenders for their requirement. Small farmers, छोटे किसान, they have got a small piece of land, उनका प्रोडक्शन भी स्मॉल होगा, वो सेविंग भी कम कर पाएंगे, then that's why अपनी फैमिली नीड्स के लिए भी उनको सारा सामान रखना है, तो दे हैव टू बोरो मनी फ्रॉम द मनी लैंडर्स, बड़े बड़े फार्मर्स से उनको पैसा बोरो करना पड़ेगा. एंड जो लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स है, जो उनका सरप्लस प्रोडक्ट्स है, वो उनको सेल आउट कर लेते हैं. एंड द अमाउंट दे रिसीव दे कैप देमसेल्फ फॉर देयर फ्यूचर रिक्वायरमेंट, आने वाले सालों के लिए उस पैसे को वो संभाल के रख सकते हैं, बिकॉज दे हैव गॉट द सरप्लस एक्स्ट्रा मनी विद देम, उनके पास पैसा बचा हुआ है. नाउ व्हाट वी हैव लर्न, we have learned about the farming is the main production activity in the village of Palampur. Beside that, other choti small activities also carried out in the village of Palampur. Only 25%, 1/4 of the population activity are engaged in other activities other than agriculture. So what we learned, 75% of population, I repeat, 75% of population is engaged in agriculture, and nearly about 25% of population is engaged in other activities, dairy farming, transportations, shopkeepings and many other things. Dairy is the common activity, हर village में होती है, क्योंकि they have got many cattle in the villages, जो हमको शहरों में देखने में, cities में देखने को नहीं मिलते हैं. People feed buffaloes for various kind of grasses, ज्वार, बाजरा, which we grow in the rainy season, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था. द मिल्क इज सोल्ड टू रायगंज. रायगंज, एज वी डिस्कस्ड, एक लार्ज विलेज है नियर पालमपुर. टू ट्रेडर्स फ्रॉम द शाहपुर हैज सेट अप द कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स. क्यों? फॉर द कन्वीनियंस, रोज रोज उनको नहीं आना पड़ेगा, तो उन्होंने पालमपुर के अंदर ही सेंटर बना दिया है, जहां से वो लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं मिल्क्स वगैरह को टू द वेरियस टाउन्स एंड सिटीज. हियर वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ 3 farmers. Each has grown wheat in their fields. The production level is different, but the consumption level is the same by all the 3 farmers and their families. The remaining portion which is left, which is known as surplus, जो surplus बोला जाता है, is to be used as a capital for the next coming year production. उसी को हम लोग सीड्स की तरह यूज करेंगे, या उसको सेल आउट करके जो पैसा आएगा उसको एज अ कैपिटल हम लोग यूज करेंगे. At present, less than 50 people are engaged in manufacturing units in the village of पालमपुर. यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो चीजें हैं पालमपुर में अदर देन प्रोडक्शन, उसके बारे में. व्हाट आई रिपीट, आई एम सेइंग दैट लेस देन 50 पीपल, ओनली लेस देन 50 पीपल्स आर एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर. पालमपुर के अंदर क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. दे व्हाट दे आर मेकिंग एट देयर फैमिली विद देयर हेल्प ऑफ देयर फैमिली एट होम, जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है, एंड सिंपल मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन दे आर यूजिंग, जिसको हम बोलते हैं गृह उद्योग, होम बेस्ड इंडस्ट्रीज. द ट्रेडर्स ऑफ द पालमपुर मोस्टली परचेज देयर गुड्स फ्रॉम द बिग सिटीज एंड टाउन्स एंड द होलसेल रेट. बड़े मार्केट से खरीदते थे सामान को बड़े रेट्स के ऊपर, होलसेल रेट्स के ऊपर, और अपने गांव में आके पालमपुर के अंदर आके उनको इजी रेट्स के ऊपर बेच देते हैं. करीम, लोकल ऑफ पालमपुर, वहां पे उसने कंप्यूटर क्लास ओपन की है, सो दैट लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वो कंप्यूटर टीचिंग्स दे सके. आसपास के, नॉट ओनली पालमपुर बट नियर अबाउट विलेजेस, मैनी स्टूडेंट्स आर कमिंग फॉर अटेंडिंग द कंप्यूटर क्लासेस विद करीम. Karim found a number of students in the village area for attending computer classes. There are 2 women who have got also a degree in the computer application. So Karim decided to employ these both ladies, both women with them, to teach as much as the students and make them aware about the computer knowledge. He bought a computers and set up the classes in front room of their house, in their own house. अपने घर के अंदर ही उसने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बनाया है और फ्रंट रूम के अंदर उसने कंप्यूटर क्लासेस शुरू कर दिए हैं. हाई स्कूल स्टूडेंट्स मोस्टली आर कमिंग in a good number for attending computer classes. For the spread of education of a computer, many students also are coming. Transport, the most important backbone of our infrastructure. Without transportation कुछ भी possible नहीं है. ना माल आएगा आपके पास, ना गुड्स आएंगे, ना गुड्स आपके पास से जा सकते हैं. The fast developing sector, रिक्शे वाला, तांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर्स, ट्रक ड्राइवर्स एंड अदर पीपल्स जो ड्राइविंग कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बुलक कार्ट्स, बोगी, यू नो व्हाट इज अ बोगी, यू मस्ट हैव सीन जस्ट लाइक अ तांगा. तांगे के अंदर हॉर्स होता है एंड बोगी के अंदर पाड़ा,
भैंसा बंदा होता है जो उसको लेके जाता है। ये अर्लियर टाइम्स में होता था बट नॉट नाउ डेज। ठीक है, मैनी पीपल आर एंगेज इन द ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज। द फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड रिटर्न दे आर पेड फॉर इट। रिक्शे वाला होता है, उनको लेके जाता है और आते वक्त उनको क्या मिलता है, उसके लिए पैसा मिलता है। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट चैप्टर। ऑल द बेस्ट।